वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ बायोलॉजी का डीजे बजाने के लिए तैयार हूं। पिछली क्लास में हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में जानकारी ली थी। वी हैव डन ऑल द एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग tropic movements, or you can say the coordination in plants with respect to tropic movements as well as the nastic movements, and the types of tropic movements: phototropism, geotropism, hydrotropism, chemotropism, thigmotropism, and also the nastic movement type of nastic movements, that is photonasty and thigmonasty. And then we discussed about the reasons of thigmonasty as well as thigmotropism. So all those what we have discussed in previous class are very wonderful questions for board exams, and you will find you will catch them in coming board exams also. Now we are going to discuss most important activity of this chapter, and that is based on phototropism. So this 6.2 activity is based on phototropism. That is based on phototropism. So for that we take a conical flask with water and then cover the neck of the flask with a wire mesh, जाली जिसे हम कह सकते हैं, that's a very common word. Keep 2 or 3 freshly prepared bean seeds. Bean seeds आपका फली जिसे हम कहते हैं, bean seeds on wire mesh हमने उसके ऊपर रख दी. Take a cardboard which is open from one side, that is the cardboard, और इसे विंडो के पास रख दिया हमने. And here the light is coming. Sunlight इधर से आ रही है. Keep the flask in the box in such a manner that the open side of the box faces light coming from window. As you see in this diagram, after 2 or 3 days, you will notice the shoot bends towards light and roots away from light. That is most important point जिस पर पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि what do you observe after 2 or 3 days? So you will notice shoots bends. अब आप देख रहे हैं that shoot bends towards light and roots move towards water, you can say, or gravity, as you like, you can write. So that is phototropism is shown by the stem part, shoot part, and geotropism as well as the hydrotropism is shown by roots. Now turn the flask so that shoots are away from light and roots towards light. इसको हमने इस तरीके से टर्न कर दिया. Leave it undisturbed in this condition for few days. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि what will happen if we turn that? So have the old parts of the shoot and root changed direction? Are there differences in the direction of new growth? And what can we conclude from this activity? So all these are the source of questions for board exam. Have the old parts of the shoot and root changed direction? That definitely yes. Are the differences in the direction of the new growth? Yes, बिल्कुल है, differences हैं. What can we conclude from this activity? तो हम इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड करते हैं अभी तक कि shoot always move
और शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रेस्पॉन्स टू लाइट, और लाइट की डायरेक्शन में ही वो ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, वो बेंडिंग उसी डायरेक्शन में शो करेगा जिस तरफ लाइट होगी। और इसी तरीके से रूट हमेशा वाटर या ग्रेविटी की तरफ ही मूवमेंट शो करेगा। सो दैट इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्टिविटी। सो आई एम शेयरिंग द QR code to mention the answers of these questions what we have discussed so far, that is very valuable। आजकल यही आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से बनकर आ रहे हैं, या डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, सेम डायग्राम आपको दे दिया एंड दे आस्क दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो इसी तरीके से आपको सेम आंसर लिखने हैं। सो आई थिंक दैट इज एनफ टाइम टू रीड दिस। नेक्स्ट इज, अब आगे की बात करते हैं। तो सेम थिंग इज गिवन, देखिए जब हमने इसको पलट कर रख दिया तो अब सेम ये आपको डायग्राम देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ये सेम। तो देखिए नेक्स्ट व्हाट वी गोइंग टू डिस्कस। अब आगे के पार्ट पर चलते हैं। देखिए एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज, अब दीज आर स्टीमुली हियर, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स मतलब स्टीमुली, दीज आर द स्टीमुली सच एज लाइट, लाइट की बेसिस पर हमने वर्ड यूज करा, वी वर्ड यूज द वर्ड फोटो, फॉर ग्रेविटी वी यूज द वर्ड जियो, will change the direction that plants parts grow in. These directional or tropic movements can be either towards the stimulus or away from the stimulus. That is another very important point. They may be in the direction of stimulus or away from the direction of stimulus. Next, so in two different kinds of phototropic movements, shoot देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, शूट्स रेस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट वाइल रूट रेस्पॉन्स बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट? भाई अब प्लांट में शूट पार्ट जितना भी है उसमें मेन है लीव्स जो कि फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो उन्हें धूप की तलाश रहती है, दे रिक्वायर्ड दैट सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई they always move towards light, bending show towards light। अब यहां पर अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स ऑलवेज प्रिफर to move towards gravity in search of water, that's why they show positive geotropism and positive hydrotropism, and shoots show positive phototropism। Next, plants show tropism in response to other stimuli as well. जैसे roots of plant always grow downwards while the shoots usually go upwards away from the earth. So that why इस चीज को हम क्या कहेंगे? यही चीज जियो के बेसिस पर आ गई, ग्रेविटी के बेसिस पर, दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रेस्पेक्टिवली इन रेस्पॉन्स टू पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म। सो दैट इज दे आर डिस्कसिंग अबाउट जियोट्रॉपिज्म। तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके लिए। तो जियोट्रॉपिज्म की हम बात करें तो जो रूट्स हैं that show positive geotropism, and for shoot they show negative geotropism। so that is very very important। next discussion क्या है जी अब हमारा, if hydro means water and chemo refers to chemicals, what will be the hydrotropism and chemotropism mean? तो अब आपको ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डायरेक्शनल ग्रोथ or directional movement with growth in response to chemicals, जो कि हमने पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन में देखा था, और रूट्स का वाटर की तरफ मूवमेंट जो हमने हाइड्रोट्रोपिज्म का अभी एग्जांपल डिस्कस किया। नेक्स्ट देखिए व्हाट दे आर सेइंग, can we think of examples of these kinds of directional movements? Already we have discussed। अब देखिए one of the example they are discussing,
One example of chemotropism is the growth of pollen tube towards ovule, which will learn next chapter में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। तो जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं वो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि नथिंग वी डिस्कस बियॉन्ड द एनसीईआरटी एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इन सारे बेसिस पर क्वेश्चंस बहुत बनकर आते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। लेट्स फोकस ऑन द क्यूआर कोड ताकि आप इसको स्कैन कर सकें और इसको प्रिजर्व कर सकें। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी NCERT section thoroughly with questions, with competency based questions to generate your ability for exam. So I think this is enough time for this QR code. Okay, let's move to next. अब आगे के हिस्से पर चलते हैं, देखते हैं what they are say, what they are saying. Let us now once again think about how information communicated in the bodies of multicellular organism. बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इस वैल्यू पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बात करते हैं हाउ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर प्लांट और एनिमल्स के केसेस में डिफरेंस है। देखिए यहां पर इसी चीज को ये टारगेट कर रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट इन रेस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। अब ये डिफरेंसेस आ गए आपके। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रेस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। सो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विल बी स्लोअर। तो ये आ गया आपका डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट्स। भाई देखो जब ग्रोथ होगी साथ में तो इट टेक्स टाइम। विदाउट ग्रोथ you can easily understand that will take place faster. So that same they are saying even in animals body there are carefully controlled directions to growth. Our arms and fingers grow in certain direction, not haphazardly. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हमारी हाथ पैर की उंगलियां किसी भी डायरेक्शन में मूव करती हैं? नहीं, एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करती हैं, ग्रोथ करती हैं और उनका शेप साइज एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, हैफेजार्डली नहीं होता है। और इस चीज को भी हम पढ़ेंगे, दैट इज मेंटेन्ड बाय, इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, दिस इज मेंटेन्ड बाय ग्रोथ हार्मोन। यही हमारा ग्रोथ हार्मोन का मेन काम है कि उसको ग्रोथ डेवलपमेंट करना, लेकिन एक लिमिट में, एक कंट्रोल्ड वे में। आप देख रहे हैं हमारे दोनों कान बराबर होते हैं, हमारी दोनों हाथों की उंगलियां बिल्कुल शेप साइज में बराबर होती हैं। कभी किसी को आपको देखा है कि एक कान बड़ा एक कान छोटा? कभी नहीं हो सकता। दैट लुक्स ऑड, और वो ही फिर डेवलपमेंट नहीं है, वो कमी है। दैट इज द मिस्टेक। So that's why it is very, very necessary. Each and every particular thing is going on in a very nice way in the body. And that is the control and coordination. So controlled movements can be either slow or fast. If fast, responses to stimuli are made, information transfer must happen very quickly. So इसके लिए for this medium of transmission must be able to move rapidly. So again that discussion will help you a lot to understand the basics of this control and coordination. On these क्वेश्चंस कम इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। ये लाइन, एक एक लाइन हमारे लिए कीमती इसीलिए है क्योंकि किसी पर भी कोई भी सोर्स बनकर कोई भी क्वेश्चन किसी भी पैटर्न पर क्वेश्चन बनकर आ सकता है। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, सो वी मस्ट डिस्कस अकॉर्डिंगली। आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू डील विद दिस। नेक्स्ट वी मूव फॉर द नेक्स्ट सिनेरियो।
अब चलते हैं आगे के लिए। अब देखिए ये फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं, अब इसको शुरू करते हैं। देखिए, let's start this. That is another very important point. Electrical impulses are an excellent means of this. क्विक रेस्पॉन्स जो आता है हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के थ्रू आता है, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम में जो मूवमेंट होता है मैसेज का, वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। आपको मैंने बताया था नर्व्स के एक्सॉन के थ्रू, और जहां दो नर्व्स के बीच में या एक नर्व मसल्स के बीच में या नर्व और ग्लैंड के बीच में, सो दैट बिकम केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। आपको ध्यान होगा एसिटल कोलाइन उसका एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। अब यहां पर इनकी भी लिमिटेशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड के लिए बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है जो आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। व्हाट इज दिस? बट देयर आर लिमिटेशंस टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, राइट द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, और डिसएडवांटेज की जगह शॉर्ट कमिंग्स, डीमेरिट्स, सच वर्ड्स, लिमिटेशंस कैन बी यूज्ड। अब देखिए सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? दिस इज द फर्स्ट वन। They will reach only those cells that are connected by the nervous tissue, sorry, not each and every cell in the animal body. देखिए ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड के जो जंक्शंस होते हैं वो 3 होते हैं, बिटवीन नर्व्स, बिटवीन नर्व एंड ग्लैंड, एंड थर्ड बिटवीन नर्व एंड मसल। तो ये 3 बेसिक जंक्शंस हैं, इनके अलावा हमारे शरीर में नर्वस कनेक्शंस नहीं होते। तो अब ये लिमिटेशन ही है कि हर बॉडी पार्ट से, हर हिस्से से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन हां इनके थ्रू अटैचमेंट सब जगह है। सो दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन की अब बात करते हैं। देखिए आप एक रेस दौड़कर आ रहे हैं, आपने एक 100 मीटर रेस की रेस में पार्टिसिपेट किया और आप उसको फिनिश करके आ गए, और जस्ट ही आपसे टीचर कहे फिर आकर के भाई आपको अब फिर 400 मीटर के लिए दौड़ना है। देयर मस्ट बी अ टाइम टू रीसेट योरसेल्फ। आपको अपने आप को फिर दोबारा से दौड़ने के लिए कुछ समय चाहिए। तो उसी तरीके से एक न्यूरॉन जब एक इंपल्स को, एक मैसेज को अगले टारगेट तक, जहां तक भी उसको पहुंचाना है, भाई उसको दूसरी नर्व तक पहुंचाना है या ग्लैंड तक पहुंचाना है या मसल तक पहुंचाना है, तो वहां पहुंचाने के बाद दूसरे मैसेज को पहुंचाने के लिए, वो रीसेट होने के लिए कुछ ना कुछ समय लेगी। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। यही आपसे कह रहे हैं कि सेकेंडली वंस अ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज जनरेटेड a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new nerve impulse. So that is very very important, these 2 points। आप देखिए मैं समझता हूं कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, एंड दैट इज न्यू फॉर यू। डेफिनेटली आई विल से दैट पहले आपने इसको इस लेवल पर नहीं पढ़ा होगा। तो यही मेरा काम है कि आपको वो चीज देना जो आपको और कहीं नहीं मिल रही है। दैट इज द माई स्पेशल पॉइंट्स। So these are the value points. In other words, cells cannot continually create and transmit electrical impulses. लगातार सेल्स इस काम को नहीं कर सकते।
This is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, and that is namely chemical communication. अब यहां पर ये एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि what is the need of chemical communication in animals, as already they have the nervous system and the muscular system, even though why? आ गया देखिए नया क्वेश्चन, दैट इज नेम्ड एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। इसी को ही हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नाम देते हैं। तो अब ये लिमिटेशन के बेसिस पर भी पूछा जा सकता है, दैट इज द लेवल वन। इसे लेवल वन कहेंगे, बेसिक लेवल कहेंगे। अब इसको हमने एडवांस कर दिया कि इन एनिमल्स they already have nervous system, then what is the need of केमिकल कम्युनिकेशन और एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम? तो उसकी वजह यह है कि सेल्स के साथ नर्व्स का हर जगह कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तीन जगह है केवल, नर्व्स के बीच में, ग्लैंड्स के बीच में, नर्व और ग्लैंड के बीच में, और नर्व और मसल के बीच में। दैट कनेक्शन इज नॉट थ्रू आउट द बॉडी, सो दैट्स व्हाई देयर इज another system to communicate between cell and cell, and that communication is named as chemical communication. So that is, now you can understand how important this value point is. So I am generating the QR code. Focus on that. Save this for the future because it is very very important for your board exam. अब बोर्ड ऐसे ही नई चीजें ढूंढ रहा है और उन नई चीजों का नाम उसने नया ही रखा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ट्रेडिशनल चीजें बहुत मिलेंगी, अवेलेबल हैं, लेकिन ये नई चीजें केवल मेंटोर जी पर ही मिलेंगी। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से इन पर फोकस करना है। दीज आर वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। आई थिंक दैट इज एनफ टाइम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आगे चलते हैं, अब आगे प्रोसीड करते हैं। मैं समझ रहा हूं बच्चों आपको पूरा मजा आ रहा होगा इसके लिए। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट इज, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट topic, next value of this chapter. If instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release a chemical compound. अब देखिए यहां पर क्या है, जिस पर्टिकुलर सेल से या ग्लैंड से हार्मोन बन रहा है उसे हम सोर्स ग्लैंड या सोर्स सेल नाम देंगे। अब सपोज कीजिए कि मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूं और फिर आपको इस बेसिस को समझाता हूं, व्हाट आई मीन टू से, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। सपोज कीजिए दैट्स अ सोर्स सेल और ग्लैंड, ये कोई ग्लैंड है और सोर्स सेल है, ठीक है। इसके चारों तरफ देयर आर, सो इसके चारों तरफ ये डिफरेंट सेल्स हैं, नेबरिंग सेल्स जिन्हें हम कह सकते हैं। दीज आर द नेबरिंग सेल्स। तो these I am drawing the neighboring cells. So these are the neighboring cells. तो इनको हम लेबल कर देते हैं नेबरिंग सेल्स। ये हो गई जी नेबरिंग सेल्स, ये हो गया सोर्स सेल। अब जैसे ही सोर्स सेल को कोई इंडिकेशन मिलता है, कोई एज एज सोर्स सेल get any information, it starts
to release chemical compound, and this chemical compound is nothing but that is हार्मोन। इसी को ही हम क्या नाम देंगे? हार्मोन कहेंगे। अब ये प्लांट्स में भी डेवलप होते हैं और एनिमल्स में भी डेवलप होते हैं। अब यहाँ हार्मोन बनना शुरू हो गया, ये आ गया आपका हार्मोन। अब ये हार्मोन चारों तरफ सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। इन सेल्स के ऊपर, इन सेल्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं? इनकी सेल्स के सरफेस पर these cells have special molecules on their surface। सभी सेल्स की सरफेस पर ये आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जहां भी कांटेक्ट में होंगे ये सभी सेल्स, और इन्हें हम कहेंगे रिसेप्टर्स। व्हाट दीज आर कॉल्ड? रिसेप्टर्स। तो ये रिसेप्टर्स सोर्स सेल से उस केमिकल को रिसीव करते हैं, फिर उस नेबरिंग सेल से और सेल्स, फिर उनसे और सेल्स, फिर उनसे और सेल्स। इस तरीके से ये हर सेल से कनेक्शन में रहते हैं। जो सेल्स नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्शन में नहीं है वहां पर ये हार्मोनल सिस्टम एक बड़ा रोल प्ले करता है। इस तरीके से ये मूवमेंट फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल प्रोसीड होता है। तो ये उसी चीज को आपको अब वैल्यू दे रहे हैं। ध्यान से आप इस चीज बात को समझेंगे तो यू कैन ऑब्जर्व दैट। देखिए, इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल impulses between cells release a chemical compound, this chemical compound will diffuse all around the original cell if other cells around them to detect compound using special molecules on their surface। अब ये special molecules ही क्या है? These are receptors, जिसकी बात मैंने अभी आपको बताई है डायग्राम के थ्रू। These are receptors on their surface and they would be able to recognize information and then transmit it। ये रिसीव करते हैं, नेक्स्ट सेल्स को भेज देते हैं, फिर नेक्स्ट सेल्स रिसीव करती हैं, उनसे नेक्स्ट सेल्स को भेज दी, फिर वो नेक्स्ट सेल्स रिसीव करती हैं, उनके नेक्स्ट। तो जहां टारगेट ऑर्गन है वहां तक, टारगेट सेल तक ऐसा ही होता रहता है। और इस तरीके से जहां पर नर्व्स का जाल है भी नहीं वहां तक भी कम्युनिकेशन टोटली डिलीवर हो जाता है। तो इस तरीके से ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन शरीर के अंदर होता है, जो नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम मिलकर काम करते हैं। दे डू दिस जॉइंटली। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या कह रहे हैं ये, कि दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल parts of the cells regardless of nervous connection and it can done steadily and persistently। तो यहां पर अब ये डिफरेंस हो गया, डिफरेंस बिटवीन हार्मोनल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम के, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम के बीच में डिफरेंस की बात करें तो हार्मोनल सिस्टम स्लो है, नर्वस सिस्टम फास्ट है। हार्मोनल सिस्टम रैपिड है, वो सॉरी आपका नर्वस सिस्टम रैपिड है लेकिन हार्मोनल सिस्टम स्टीडी है बट परसिस्टेंट है। तो इस तरीके से ये आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आजकल बोर्ड इसी तरीके से नई चीजें ढूंढ रहा है और पूछ रहा है। दीज कंपाउंड्स और हॉर्मोन्स यूज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी एज वी वुड एक्सपेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए, different plant hormones help to coordinate growth, development, responses to environment। So that is the definition of hormone। ऐसा पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और एनवायरमेंट के रेस्पॉन्सेस को कोऑर्डिनेट करे
उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नेम्ड एज हार्मोन। अब वेदर इट इज प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन, thing is same, definition is same, there is no difference in that. So अब ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है कि दे आर synthesized at places away from where they act, simply diffuse to the एरिया ऑफ एक्शन। ये आपको मैंने दो दो एग्जाम्पल में बताया। जब हमने टेंड्रिल्स वाला एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि टेंड्रिल्स जहां पर क्लिंग होते हैं, वहां जहां वो सर्कल बनाते हैं उस पर्टिकुलर अटैचमेंट के चारों तरफ और वहां उस पर चिपकते हैं, तो वो हिस्सा ऑक्सिन प्रोड्यूस करता है। बनता वहां है और वर्क अवे करता है जहां से वो रैपिड मूवमेंट शो करता है, ग्रोथ डेवलपमेंट शो करता है और प्लांट आगे मूव करता हुआ बढ़ता चला जाता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, अभी हमने एक्टिविटी पढ़ी थी 6.2 इसी वीडियो में, तो बनेगा ऑक्सिन कहां? जहां धूप पड़ रही है। और वर्क कहां करेगा? जहां वो बेंड हो रहा है। बेंड हो इसलिए रहा है क्योंकि वहां पर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ होने की वजह से वो मुड़ता दिखाई देता है, वो बेंड होता दिखाई देता है। किसकी डायरेक्शन में? लाइट की डायरेक्शन में। इसी तरीके से टच मी नॉट प्लांट पर हमने पढ़ा। तो ये सभी सेल टू सेल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं और ये एग्जाम्पल किसके बेसिस पर हैं? हॉर्मोन्स के बेसिस पर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन के बेसिस पर है। सो आई एम शेयरिंग द QR कोड अगेन to save these notes, these are very important। टॉपिक बाय टॉपिक मैं बिल्कुल डिस्कस कर रहा हूं एक एक वैल्यू पॉइंट को, दैट इज हिडन इन द एनसीईआरटी। इसीलिए एनसीईआरटी को गागर में सागर कहते हैं। इसमें बहुत सारी वैल्यू पॉइंट्स हैं जो छुपे रहते हैं, जो हम स्कूल्स में छुपे ही रह जाते हैं, हम उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं। हम मेंटोर जी के साथ यही चीजें आपको फ्लरिश कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं आपके बीच में, ताकि आप इनको अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सके। आई थिंक दैट इज वैल्यू, दैट इज एनफ टाइम टू कोऑर्डिनेट विद दिस। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वैल्यू पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब यहां पर ये देखिए प्लांट हॉर्मोन्स की बात करते हैं हम। लेट्स डिस्कस अबाउट द प्लांट हॉर्मोन्स। तो प्लांट हॉर्मोन्स आपके सिलेबस में, इफ वी टॉक अबाउट द प्लांट हॉर्मोन्स, तो प्लांट हॉर्मोन्स आर ऑक्सिन्स, जिसका ऑलरेडी हम काम देख चुके हैं। एंड देन वी हैव द जिब्रेलिन्स, and then we have cytokinins, and then we have ABA एब्सेसिक एसिड। ये आपके सिलेबस में है और एक आपको जानकारी के लिए बताऊंगा मैं, दैट इज नॉट इन द सिलेबस एंड दैट इज इथाइलिन। सो दीज 5 plant hormones you have in your syllabus. Let's discuss these plant hormones one by one। अब देखिए ऑलरेडी ऑक्सिन के तीन तीन एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आपका जहां लाइट पड़ेगी वहां पर मिलेगा, जहां भी कोई टच का रेस्पॉन्स होगा वहां पर मिलेगा, और इसी तरीके से जहां टेंड्रिल्स क्लिंग करते हैं वहां पर मिलेगा और उसके अवे मूवमेंट शो करेगा। तो वो तो बाकी सारे भी, जिब्रेलिन्स भी, आपका साइटोकाइनेंस भी, ये सभी भी उसी तरीके से मूव और डेवलपमेंट करेंगे। तो अब इस चीज को समझते हुए लेट्स मूव टू, अब इनके डिस्कशन करते हैं फंक्शंस के बारे में और इनके लोकेशन के बारे में। देखिए जी, अब आप इसको, चलिए पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। लेट्स मेक इट लार्जर। अब फिर आपके साथ इसको डिस्कस करना आसान हो जाएगा। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेट अस टेक एन एग्जांपल विद, वी वर्कड विद अर्लियर एक्टिविटी, व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट द टिप। अभी मैंने आपको बताया था कि ये टिप पर सिंथेसाइज होता है, लेकिन डेवलप कहां होता है? दैट डेवलप्स एट द टिप और वर्क करता है उसके अवे, हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses to the shady place। ऑक्सीजन कहां डिफ्यूज हो जाता है? शेडी प्लेस की तरफ डिफ्यूज हो जाता है। बनता कहां है?
बन रहा कहां है? दैट इज डेवलपिंग एट where the light is falling. Where the light is falling, that is developing there, but it works away from in the shady place. और यही वजह है, this concentration leads to oxygen stimulates the cells to grow longer in the side of the shoot away from the light, and that shows bending of the light. That shows bending, and this is very important board question. कई बार बोर्ड में आ चुका है कि आपके दे दिया plant appears to bend towards light, give reason. So that's a very important 2 or 3 marks question for the board exam. So you have to focus a lot for this. That is very 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 important for board. Next अब बात करते हैं, another example of hormones is gibberellins, which like auxin help in growth of the stem. ये भी growth का ही काम है, इसका भी सेम, ये भी ग्रोथ और डेवलप करने में हेल्प करता है, ऑक्सिन के जैसा ही फंक्शन है। तो आप ये समझ लीजिए कि ऑक्सिन के साथ कोरिलेट होकर काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें साइटोकाइनिन्स, ये सेल डिवीजन प्रमोट करता है, सेल डिवीजन, दैट इज द जॉब ऑफ साइटोकाइनिन्स। और ये इसकी लोकेशन की बात करें भाई, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नेचुरल प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन वेयर रैपिड डिवीजन टेक प्लेस, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जहां भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसके अलावा फ्रूट सीड्स इनके अंदर भी पाया जाता है। तो ये तीनों ऑक्सिन, आपका जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, दीज आर ग्रोथ प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स, ग्रोथ प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स। तो ग्रोथ प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स आपके 3 हो गए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, बिकॉज ऑल आर रिलेटेड टू ग्रोथ। ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को डेवलप मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। अब आता है एबीए, जिसे हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड, दैट इज एब्सिसिक एसिड। दिस एब्सिसिक एसिड basically short is named as ABA, that is growth inhibiting hormone, that is growth inhibiting hormone, क्योंकि ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। और इसीलिए इसको, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये हॉर्म आपका जितने भी स्ट्रेस होते हैं, जैसे ज्यादा ठंड, कोल्ड हो गया, हॉट हो गया, बहुत तेज हवा हो गई, इन सभी कंडीशन में भी प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अब इसमें आपका एक फंक्शन इसका दे रखा है, विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों का मुरझाना, और इसके अलावा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, closing of stomata, that is the another function of, so all these are phytohormones or plant hormones, phyto हॉर्मोन्स भी हम इन्हें कहते हैं, और इन्हीं को ही हम प्लांट हॉर्मोन्स भी कहते हैं, और इनको हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये नाम भी इनका ही है, पी GR, PGRs also, these are the same. So that's all about in this class. अब मैं इसका QR कोड शेयर कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से आप इसको मेंशन करें, इसको सेव करें, इन नोट्स को प्रिपेयर करें। जितना नोट्स प्रिपेयर करेंगे उतना आपके लिए वो एक्सेस होना आसान होगा, उसका रिट्राइवल आपके लिए आसान होगा, उसको आगे तक लर्न करना आपके लिए आसान होगा। I think that is enough time to correlate with this. Let's move to the next QR code. अब हमने जो इसके साथ लिखा था उस QR कोड को, सॉरी, I share with you. So we have discussed so many value points in this class. Those are very very important for you to connect with the board exam. उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करना, उन सारी चीजों को करना, ये सभी चीजें आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। So this is the enough time to deal with this QR code. Okay, let's
So that's all about in this class. We will meet again for the next topic to consider. इसी तरीके से जुड़े रहिए और वीजे के साथ बायोलॉजी को आसान बनाते रहिए और बायोलॉजी का डीजे यूं ही बजाते रहिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।